Hello everyone, good morning. Students, in the previous lecture, you know that we have gone through the applications of adsorption as well as what is the concept of catalysis. I told you there are two types of catalysis process, homogeneous and heterogeneous also, and with examples. And I think at the last part of the topic, we have gone through the concept of inhibitors also with examples. चलिए आज हम शुरू करेंगे हमारा लेक्चर विद द टॉपिक दैट इज नथिंग बट हियर थियरी ऑफ एडसॉर्प्शन ऑफ heterogeneous catalysis. You know that the catalysis in which the physical state of reactant as well as catalyst, they are different. It is known as a heterogeneous catalysis. The catalysis in which the physical state of the reactant and the catalyst are different, then it is known as a heterogeneous catalysis. तो ये कैसे होता है? I mean the mechanism of the catalytic action, it takes place on the surface of the catalyst और इसके लिए ये होते हैं 5 steps. चलिए अभी देखते हैं इनके बारे में. So the first step is here diffusion. तो पहले स्टेप में यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होता है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और रिएक्टेंट टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. ये होगा पहले स्टेप में. डिफ्यूजन मीन्स हियर मिक्सिंग. तो क्या होगा? यहाँ जो भी यहाँ पे होंगे रिएक्टेंट्स वो डिफ्यूज हो जाएंगे टुवर्ड्स द surface of the catalyst. Then in the next step there will be adsorption. मतलब adsorption of reactant molecules on the surface of catalyst. तो सेकेंड स्टेप में यहाँ पे जो होता है प्रोसेस उसको हम लोग बोलते हैं adsorption. So the reactant molecules जो है वो सरफेस के ऊपर कैटलिस्ट के एडसॉर्ब हो जाएंगे. So this is the second step. Then in the third step there will be the reaction. और ये जो रिएक्शन होगा ये रिएक्शन होता है on the surface of the catalyst. So catalyst provides the surface for the reaction to occur. Okay? तो जब भी यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे फॉर्म होगा इंटरमीडिएट. Okay, so there is an intermediate formation that will takes place on the surface of the catalyst. फिर बाद में जाके स्टेप नंबर 4 में आपको मिलेगा प्रोडक्ट. तो in a step number 4 there is the formation of the product that will takes place. Again it will takes place on the surface of the catalyst. अभी स्टेप नंबर 5 में हमें करना होगा डिसॉर्प्शन. You know that it is exactly reverse of the adsorption. The process of the removal of adsorbed substance from the adsorbent is known as a desorption. Desorption is exactly opposite to that of the adsorption. तो जो भी यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म उसको हमको रिमूव करना होगा and the process is known as a desorption. So in this way कैटलिस्ट के सरफेस में से जो भी होगा प्रोडक्ट उसको बाहर किया जाएगा. So product will leave the surface. In this way catalyst जो भी होगा it will remain unchanged. So in the 5 steps the mechanism will take place. ठीक है? अभी देखिए बोर्ड पे मैंने जो रिएक्शन लिखा है this is nothing but the reaction between sulfur dioxide and oxygen to form sulfur trioxide. Obviously यहाँ पे NO2 गैसियस फेज में है जो कि एक्ट होता है एज अ कैटलिस्ट. सो दिस इज द रिएक्शन. रिएक्शन को बैलेंस करना होगा हमें पहले. ठीक है? सो दिस इज द रिएक्शन दैट वी हैव टू स्टडी. Obviously this is not an example of a heterogeneous catalysis. It's an example of a homogeneous catalysis. क्योंकि रिएक्टेंट का जो फेज है वो है गैसियस फेज और जो यहाँ पे हमें यूज किया है कैटलिस्ट वो भी है इन अ गैसियस फेज. सो दिस इज द रिएक्शन.
This reaction occur in a 2 steps. In the first step, सल्फर डाइऑक्साइड विल रिएक्ट विद द कैटलिस्ट, जो कि यहाँ पे है NO2, ये फॉर्म करेगा सल्फर डाइऑक्साइड जो यहाँ पे है प्रोडक्ट, साथ ही साथ यहाँ पे फॉर्म होता है एक इंटरमीडिएट, ठीक है, NO. नाउ दिस इंटरमीडिएट इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द NO2. अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा. सो ट्वाइस SO2 गैसियस प्लस twice NO2 gaseous plus twice NO gaseous plus O2 gaseous. देखिए जो एरो के है लेफ्ट साइड में उन्हें हमें लिखना है ऑन द लेफ्ट साइड, और जो भी है एरो के RHS साइड में तो वो भी हमें यहाँ पे लिखने होंगे ऑन द सेम साइड, दैट इज RHS. सो twice SO3 gaseous plus twice NO gaseous plus twice NO2 gaseous. Now this is the reaction. If you check it properly, अगर हमने यहाँ पे NO2 को कैंसिल कर दिया because they are present on either side of the equation, तो चलो इसको निकाल देते हैं. Same for twice NO, we can remove it. तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा reaction twice SO2 gaseous plus O2 gaseous. It gives twice SO3 gaseous. So this is the reaction. Now ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको मालूम होना चाहिए कि how is the formation of intermediate takes place and what is the role of the catalyst. आप यहाँ पे देख सकते हो कैटलिस्ट ने यहाँ पे तो रिएक्शन में पार्ट लिया है, but it remain unchanged. Catalyst will never appear in the overall equation. यहाँ पे आपको इक्वेशन में कैटलिस्ट नहीं दिखाई देगा. सो कैटलिस्ट विल रिमेन अनअफेक्टेड. ओके, सो प्लीज नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स केयरफुली इन योर नोटबुक. नाउ लेट्स सी हियर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट. द फर्स्ट वन इज हियर कैटालिटिक एक्टिविटी. क्या होता है एक्टिविटी? सो आई विल राइट हियर द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड catalytic activity. ओके, नाउ सी ये जो है एक्टिविटी ये डिपेंड करता है केमिकल एडसॉर्प्शन के ऊपर. सो आई विल राइट हियर द स्ट्रेंथ ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी depends on chemical adsorption, और जिसको हम लोग बोल सकते हैं केमिसॉर्प्शन. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द केमिकल एडसॉर्प्शन. ओके, नाउ सी इफ द कैटलिस्ट adsorbs large number of molecules that may be gas or liquid, then it is said to be active. इसका मतलब अगर कोई कैटलिस्ट है ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है तो वो है एक्टिव कैटलिस्ट, ऐसा हम यहां पे बोल सकते हैं. बट रिमेंबर द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड द एड्सॉर्बेंट शुड नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग. अगर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा तो वो जो मॉलिक्यूल्स है ये
मूव नहीं कर पाएंगे तो वो रिएक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे. दैट्स वाई the bond formed between the adsorbate and adsorbent should not so much a strong bond. Okay, this thing we have to remember. Now see, for example, इसके जो example से it is observed that Fe, chromium, vanadium are catalysts which can adsorb, like the gases like C2H2 जिसका नाम है, we can say here acetylene gas, then C2 ये है उसी का नाम. C2H4 is nothing but ethylene gas, it's a ethylene gas. Then O2, CO2, N2. So ये जो है catalyst like iron, chromium, vanadium, they can adsorb such a kind of substances. Okay, manganese and copper can adsorb. I think it's a cannot absorb होना चाहिए, क्योंकि ये cannot absorb nitrogen and CO2. So in this way it depends on the activity. So this is the first feature of the solid catalyst. Now then the next is the feature जिसका नाम है catalytic selectivity. क्या होता है meaning of the word selectivity? Okay, it is the ability of catalyst to direct the reaction to yield particular product. Yes, मतलब यहाँ पे जो होगा कैटलिस्ट ये डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा मिलेगा प्रोडक्ट. ओके, उसको बोलते हैं हम लोग सिलेक्टिविटी. सो टू डायरेक्ट, यहाँ पे टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू यील्ड द प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये होता है सिलेक्टिविटी. सम कैटलिस्ट आर selective in their action. क्या मतलब इसका? Means here same gaseous reactants can yield different products by using different catalyst. देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए अगर हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया सेम गैसियस रिएक्टेंट्स को, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इथिलीन गैस की, C2H4 है इसका फॉर्मूला. व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन in presence of catalyst palladium and Al2O3, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? You will get here the compound that is known as acetaldehyde. तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे मिलता है acetaldehyde. In this way the reaction it will takes place. ठीक है, तो ये है यहाँ पे इथिलीन और यहाँ पे है ऑक्सीजन. हमने यूज किया है पैलाडियम को. लेकिन अगर यही रिएक्शन हमने कैरी कराया इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक Ag and Al2O3, then we are getting here C2H4O. इसका नाम है इथिलीन ऑक्साइड. So twice we have to write here, okay, and twice here also. So देखिए अगर हमने यहाँ पे चेंज किया कैटलिस्ट को तो हमें मिलेगा यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट. रिएक्टेंट्स तो दोनों के दोनों यहाँ पे सेम ही है. सो दैट्स व्हाई वी कैन से हियर कैटलिस्ट आर सिलेक्टिव इन देयर एक्शन.
ठीक है। इसका और एक एग्जांपल दिया है टेक्स्ट बुक में, आप वो भी यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो। ओके, सो नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपर्ली इन योर नोटबुक। ये भी यहां पे है इन द गैसियस स्टेट। Now, after the first two features, that is activity as well as selectivity, the third is nothing but here shape selectivity of the catalyst. जैसे कि होते हैं zeolites। क्या होते हैं पता है आपको zeolites? They are nothing but the aluminosilicates with the three-dimensional network of the silicates. Three-dimensional, if you see here, check their shape, know that they are somewhat like this. तो कुछ इस तरीके से होता है इनका स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि 3-dimensional नेटवर्क स्ट्रक्चर। ठीक है, like this. So they are 3-dimensional network. Some silicon atoms in this network are replaced by aluminum atoms, giving aluminum oxygen silicon framework. देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर है ऑक्सीजन, यहाँ पे है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे है सिलिकॉन, यहाँ पे है एल्यूमिनियम। ओके, इन द सेम मैनर वी कैन राइट हियर, यहाँ पे भी है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम like this. So aluminum, oxygen, silicon. In this way their pattern is get repeated. Some silicon atoms, देखिए तो सिलिकॉन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, इसमें से सिलिकॉन के एटम को निकाल कर अगर हम लोगों ने एल्यूमिनियम को प्लेस कर दिया तो हमें ये मिलेगा फ्रेमवर्क। सो दिस रिजल्ट इन अ माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर। जैसे ही हम इस तरीके का बनाएंगे जियोलाइट, तो इसका जो नेचर होगा इट्स अ माइक्रोपोरस। ओके, मतलब हैविंग स्मॉल स्मॉल होल्स। Zeolites have honeycomb like shape. You know honeycomb, मधुमक्खी जो होती है उसका जो होता है honeycomb, आपने देखा होगा उसका शेप, it is just like looking like this. तो it has a honeycomb like a shape. Okay, having lots of pores, lots of cavities, holes. So इसको हम लोग बोल सकते हैं कि it has honeycomb like a shape. The reactions in the zeolite are डिपेंडेंट ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द रिएक्टेंट। देखिए जो भी यहाँ पे देखो साइज और शेप होगा रिएक्टेंट का, ये साइज और शेप मैच होना चाहिए उस जियोलाइट का। मतलब जो भी यहाँ पे होंगी कैविटीज, जो भी होंगे वहाँ पे पोर्स, उन्हीं पोर्स में ये सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है ये मैच होने चाहिए। मीन्स द साइज एंड द शेप ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इट शुड मैच विद द साइज ऑफ द पोर्स ऑफ द zeolites, we can say. Okay, so the reactions in zeolites are dependent on the size and shape of the reactant or product, and also on the pores मतलब small holes, and same is the cavity मतलब say small holes of the zeolites. Zeolites are therefore shape selective catalyst. तो मतलब zeolite ये हर कोई रिएक्शन के लिए पॉसिबल नहीं होगा। कुछ यहाँ पे जो भी होंगे शेप सिलेक्टिव, मतलब जिनका शेप यहाँ पे मैच करेगा रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का विद द शेप ऑफ द जियोलाइट पोर्स, सिर्फ वैसे ही रिएक्शंस वहाँ पे होंगे। अभी क्या होता है इनका यूज, देखो जियोलाइट्स दे आर यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। सो दे आर यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, एंड द नेक्स्ट दे आर ऑल्सो यूज इन अ पेट्रोलियम इंडस्ट्री। Now see, in petroleum industry, zeolite ZSM5 converts alcohol directly to gasoline, petrol by the dehydration. देखिए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और वी कैन से हियर पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो होता है ZSM5 नाम का जियोलाइट, ये अल्कोहल का कन्वर्जन डायरेक्टली करेगा गैसोलीन में। फॉर एग्जांपल देखिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा CH3OH, इसके अगर हम लोगों ने लिए x नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना,
So on the ZSM5 there is a formation of CH2. You know that it is nothing but the हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनके कंपोनेंट दो ही होते हैं, एक तो होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है कार्बन. सो ये है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन. इट इज नथिंग बट द पेट्रोल वी कैन से. और यहाँ पे जो रिएक्शन होगा ये होगा यस डिहाइड्रेशन. तो वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा. सो वी कैन राइट हियर here will be x number of don't I think that's that this is general reaction. Don't do balancing of the reaction. तो मिथेनॉल जो है यहाँ पे हो जाएगा इसका डिहाइड्रेशन और आपको यहाँ पे मिलेगा पेट्रोल. पेट्रोलियम का दूसरा नाम होता है पेट्रोल का दूसरा नाम होता है यहाँ पे गैसोलीन. तो इस तरीके से आपको गैसोलीन मिलता है. एंड दिस रिएक्शन अकर्स ऑन द जियोलाइट जिसका नाम है ZSM5. So this is the nothing but an second example or second use of the zeolite. ठीक है. देखिए ये पेट्रोल is nothing but a mixture of hydrocarbons, especially alkanes. Alkanes होते हैं पेट्रोल में. Okay. So in this way we can say that these are the features of the solid catalyst. Please note down all these things properly in your notebook. ठीक है. Students, now the next part of the chapter, that is nothing but the colloids, we have to see exactly half part हमारा अभी हो चुका है. Know that it's adsorption. Now we have to see the next part, colloids. क्या होते हैं colloids? Yes, many of the substances that we use in a daily life, like milk, butter, cheese, mayonnaise, whipped cream, ये सब जो होते हैं these are the common examples of the colloids that you know. Okay, the knowledge of colloids, I mean the knowledge of colloidal chemistry is very very important to know the materials. Like here are the mention cement, bricks, pottery. pottery मतलब जानते हैं ना आप लोग जो होते हैं बर्तन है ना, pottery. Then porcelain. Porcelain is a like a evaporating dish that we have to use in the laboratory जहाँ पे हम लोग करते हैं evaporation का process. That is called as a porcelain. Glass. Enamels पता है क्या होता है आप लोगों को? You know that the color that we have to give on the pots. You know that attractive colors are there. Colorful pots are there available in the market. Okay. So ये होता है enamels. Oils, lacquers, rubber, celluloid. So plastics, leather, paper, textile, filaments, small filaments are there. Then crayons, you know that what is the crayons, colors, inks, road construction, material. तो इन सभी materials में mostly we have to use the colloids. I mean it's very important to know about the colloid. Okay, because it is present in all this kind of materials. So colloids are very very important. असल में क्या होते हैं colloids? Mixtures जो है ये हम लोग क्लासीफाई करते हैं into three types. You know that suspension. Second one is you know that the dispersion, or we can say here colloidal dispersion. And the third one is nothing but here the true solution. आप जानते हो true solution क्या होता है? For example, if we dissolve common salt in water, so suppose we dissolve here common salt, that is NaCl in water, then we are getting here NaCl solution. Okay, so यहाँ पे जो component होता है present कम amount में, जिसको हम लोग बोलते हैं solute. The component of the solution present in a larger amount, it is known as a solvent. And NaCl का हमें यहाँ पे मिलेगा फिर aqueous solution. So यहाँ पे आपको मिलेगा फिर solution, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि true solution भी यहाँ पे उसको हम लोग बोल सकते हैं. So solution consists of two components. एक होता है solute, दूसरा होता है solvent. The component of the solution present in a less amount is known as the solute, and the component of the solution present in a largest amount is known as a solvent. ठीक है. So such a kind of
solution has two components. Solutions जो होते हैं they may be binary solutions. Binary in the sense वहाँ पे दो ही होंगे components. Solution हो सकता है ternary, मतलब जिसमें होते हैं 3 components, and the solutions may be quaternary also, जिसमें होते हैं 4 components. So depending on the number of components present, solutions can be classified. Now अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्रू सोल्यूशन का जो एग्जांपल यहाँ पे दिया है ये है शुगर इन वाटर. नाउ पार्टिकल साइज के हिसाब से हम इनको क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में मिक्सचर्स को. एक होता है ट्रू सोल्यूशन जिसमें पार्टिकल साइज होगा 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक. बाद में होता है यहाँ पे सस्पेंशन. इफ यू सी हियर सस्पेंशन, सैंड इन वाटर, यू नो सैंड, वाळू, इन मराठी वी कॅन से वाळू. वाळू आपण जेव्हा टाकतो पाण्यामध्ये पार्टिकल्स त्याचे खूप मोठे असतात, तुम्हाला माहिती आहे, दे आर लार्जर साइज. सो सँड इन वॉटर इज एन एक्झाम्पल ऑफ अ सस्पेन्शन and the size of the particles, it is larger than 10⁻³ nanometers. So here we can say one thing, in case of a suspension, particle size is larger than 10⁻³ nanometers, means they can very easily seen by the naked eyes. आपण त्याला easily बघू शकतो. They are known as the suspension. On the other hand, if you see properly, ट्रू सोल्यूशन में जो भी होते हैं कंपोनेंट्स, आई मीन एक बार अगर कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा पानी में तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, वी आर गेटिंग द सोल्यूशन, एंड इन दैट सोल्यूशन वी विल नॉट गेट द पार्टिकल्स, आई मीन वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट. सो दे आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आइज. इन दोनों के बीच में आता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोलाइड्स. इट इज ऑल्सो नोन एज कोलाइडल डिस्पर्शन. फॉर एग्जाम्पल स्टार्च इन वाटर, इसका यहाँ पे पार्टिकल साइज होगा 1 नैनोमीटर से लेकर 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में. सो वी कैन से हियर कोलाइड्स जो होते हैं दे आर इन बिटवीन द सस्पेंशन एंड द ट्रू सोल्यूशन. ओके, आपको पता होगा जब भी हम लोग आलू काटते हैं, आलू काटने के बाद जब हम उसको डालेंगे पानी में, यू मस्ट हैव सीन देयर इज अ वाइट कलर वाटर इज देयर. सो ये जो होता है दिस नथिंग बट द स्टार्च, यू नो दैट. तो ये यहाँ पे एग्जांपल है कोलाइड्स का. ओके, तो यहाँ पे क्या होते हैं कोलाइड्स. सो कोलाइड्स आर नथिंग बट द हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं कोलाइड्स. नाउ जैसे ही होता है सॉल्यूशन में देयर इज द प्रेजेंस ऑफ 2 कंपोनेंट्स, सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट. इन द सेम मैनर कोलाइड्स में भी होते हैं 2 कंपोनेंट्स. एक होता है डिस्पर्स फेज, दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम. सो द कंपोनेंट ऑफ द कोलाइड, the component of colloid present in less amount is called disperse phase. So we can say it is analogous to solute. ये बिल्कुल होता है like solute. तो it is called as a disperse phase. The component of the colloid present in more amount is called dispersion medium, and remember it is analogous with the solvent. So यहाँ पे क्या होता है, in case of colloids there are 2 components are present. एक होता है disperse phase, it is just like the solute. दूसरा होता है dispersion medium, it is just like the solvent. Okay, so these are the many examples we can give.
Colloids can be used in a different processes that are also mentioned in your textbook. You can also go to that. Okay, now these are the different examples I told you: suspension, then colloids, as well as true solutions are mentioned here. So the main difference is there, nothing but the particle size. So particle size यहाँ पे डिसाइड करेगा कि मिक्सचर कौन सा है. ओके, सो नाउ लेट्स सी हियर क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स. कोलाइड्स जो होते हैं दे कैन बी क्लासिफाइड on the different basis. The first is here classification of colloids based on the physical state that we have to see. So classification of colloids based on the physical state. ठीक है. Now see, it's very important to know the physical state of the dispersion phase and dispersion medium. तो dispersion phase का और dispersion medium का यहाँ पे कौन सा physical state exist करता है, on that basis colloids are classified into different types. But before that, I just think that you should note all these things properly in your notebook. Okay, so the main thing is that we have to identify कि कौन सा होना चाहिए सस्पेंशन, कौन सा होता है ट्रू सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशंस एंड कोलाइड्स में डिफरेंस क्या है ये भी आपको भी मालूम हो गया है. ओके, सो काइंडली नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स इन योर नोटबुक सो दैट वी कैन प्रोसीड फॉर दिस टॉपिक. सो यहाँ पे भी एक टेबल मैंने निकाला है. दिस इज नथिंग बट द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स based on the physical state. I told you colloids has two components, dispersion phase and dispersion medium. तो इनका कौन सा होता है physical state, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका टाइप कौन सा होगा colloid का. I mean, और आगे मैंने लिखे हैं examples. So the first one is here. जब भी होगा यहाँ पे dispersion phase solid and the medium will also solid, such a kind of colloid is known as a sol. It is also known as a solid sol. एग्जाम्पल्स इसके कौन कौन से हैं? कलर्ड ग्लास, कांच, जेम स्टोन्स, नो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स आर देयर, आपने सुना भी होगा. देन पोर्सिलिन, आई टोल्ड यू इट्स अ काइंड ऑफ अ डिश दैट इज यूज इन द लैबोरेटरी, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोर्सिलिन डिश. ओके, देन पेपर, पोर्सिलिन यू कैन से हियर बाउल आल्सो, और डिश आल्सो प्रेजेंट, आई मीन अवेलेबल इन द लैब. पेपर, तो ये है इसका फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज नोन एज अ सॉलिड सोल. द नेक्स्ट टाइप इज हियर सॉलिड अगर होता है डिस्पर्स फेज और मीडियम अगर होता है लिक्विड, देन सच अ काइंड ऑफ कोलाइड्स दे आर कॉल्ड एज अ सोल्स और एंड दे आर आल्सो नोन एज अ जेल्स. फॉर एग्जाम्पल, अब तो पता है क्या होता है जेल्स. पेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. देन सेल फ्लूइड्स, यू नो दैट सेल इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं प्रेजेंट. सो दिस फ्लूइड्स, यू नो दैट सेल फ्लूइड्स, दे आर नथिंग बट एन एग्जांपल ऑफ सोल्स एंड जेल्स वी कैन से. देन जिलेटिन पेपर होता है. मडी वाटर मीन्स डर्टी वाटर वी कैन से हियर. स्टार्च सोल्यूशन, एज आई टोल्ड यू, स्टार्च. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सोल्स एंड द जेल्स. देन द नेक्स्ट टाइप इज हियर सॉलिड अगर होता है डिस्पर्स फेज और अगर मीडियम है गैस, तो ऐसा जो होता है टाइप ऑफ कोलाइड दैट इज नोन एज एरोसोल. एरोसोल का जो एग्जांपल अभी यहाँ पे है, यू नो दैट मीडियम यहाँ पे गैस है एंड डिस्पर्स फेज यहाँ पे सॉलिड. तो आपको पता है कि स्मोक, you know that's a black color smoke, then the dust we can say are the common examples of the aerosol. ठीक है. then liquid अगर है disperse phase and the medium अगर होता है solid, then the type of the colloid is also known as a gel. देखिए यहाँ पे भी जेल है, लेकिन इसको हम लोग सोल्स एंड जेल्स दोनों बोल सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये सिर्फ और सिर्फ जेली होता है. यू नो दैट चीज, बटर, jellies, most you know that most of the
chocolates you must have experienced, enjoyed. They are made up of a jelly like material. तो jelly आपको पता है, butter, cheese, these are the common things that you know. So they are nothing but an examples of the gel. Then the next is emulsion. When the dispersed phase and dispersion medium both are the liquids, such a kind of a colloid is known as an emulsion. For example, milk is an example of an emulsion. Okay, so milk में यहाँ पे क्या होता है? There is a presence of the saturated fats, as well as there is a presence of some proteinous part, as well as that water is there. तो यहाँ पे क्या होता है? They are present in a liquid state and that water is present in a liquid state. आपको पता है कि मार्केट में ऐसे भी अभी मतलब प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, मतलब आए हैं पहले से ही है, जहाँ पे हम लोग जो मिल्क है घर पे ही बना सकते हैं. यू मस्ट हैव सीन दैट पाउडर वी हैव टू ऐड इन अ वाटर, इट्स अ डिफरेंट. बट बेसिकली मिल्क क्या होता है? मिल्क होता है इमल्शन, जिसमें डिस्पर्स फेज होता है लिक्विड और मीडियम भी यहाँ पे क्या होता है? लिक्विड. देन हेयर क्रीम, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द हेयर क्रीम. ओके, आप जो यूज करते होंगे. देन लिक्विड एंड गैस, डिस्पर्स फेज अगर यहाँ पे है लिक्विड और मीडियम अगर यहाँ पे है गैस, सच अ काइंड ऑफ कोलेड इज आल्सो नोन एज एरोसोल. अभी यहाँ पे देखिए लेकिन डिफरेंस है, यहाँ पे डिस्पर्स फेज था सॉलिड, मीडियम था गैस. यहाँ पे डिस्पर्स फेज है लिक्विड एंड मीडियम इज अगेन गैस. इसको भी हम लोग बोलते हैं एरोसोल. लेकिन डिफरेंस देखिए कहाँ पर है? डिफरेंस है इन द डिस्पर्स फेज. फॉग, मिस्ट, क्लाउड, hair sprays. Then you must know that there are different types of insecticides that we have to use to kill the that insects, or we can say here आपको पता है कि बहुत सारे केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं, आई मीन फार्मर्स लोग यहाँ पे यूज करते हैं टू किल द इंसेक्ट्स. दे आर नोन एज अ इंसेक्टिसाइड्स. साइड मीन्स टू किल. सो यहाँ पे जो है होता है इंसेक्ट को किल जो करेगा, दैट इज नोन एज अ इंसेक्टिसाइड. सो फॉग, मिस्ट, क्लाउड. फॉग पता है आपको, आपने देखा होगा मोस्टली इन द विंटर सीजन वी कैन एक्सपीरियंस द फॉग. ओके, जब भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है ठंड और वहाँ पे बहुत सारा अगर डस्ट अगर पार्टिकल्स होते हैं तो हाईवे पे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा फॉग होता है. ओके, तो इन मराठी इट इज नोन एज अ धुकं. ठीक है. सो नेक्स्ट इज नथिंग बट हियर इफ द डिस्पर्स फेज इज गैस एंड द मीडियम इज सॉलिड, सच अ काइंड ऑफ अ कोलाइड इज नोन एज अ सॉलिड सोल. ठीक है. देखिए यहाँ पे प्यूमिस स्टोन जो होता है, आपने देखा हुआ तो स्टोन होता है, इट इज हैविंग स्मॉल स्मॉल होल्स आर देयर, इट्स अ पोरस, इट इज नोन एज अ प्यूमिस स्टोन. फोम रबर, then plaster, these are the examples of the solid soul. तो यहाँ पे देखिए लेकिन जो है डिस्पर्स फेज सॉलिड, मीडियम भी यहाँ पे है सॉलिड, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड सोल और इसके एग्जांपल्स अलग है. लेकिन यहाँ पे जो डिस्पर्स फेज है ये है गैस एंड द मीडियम इज हियर सॉलिड, इट इज आल्सो नोन एज अ सॉलिड सोल. ठीक है. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड सोल आल्सो हियर मेंशन. गैस अगर होता है डिस्पर्स फेज और मीडियम अगर होता है लिक्विड तो इसको हम लोग बोलते हैं फोम. दैट फोम. फ्रॉथ पता है आप लोगों को क्या होता है कि जैसे जो भी होता है झाग, आई टोल्ड यू व्हेन वी यूज हियर सोप्स और वी कैन यूज हियर वेरियस टाइप्स ऑफ पाउडर, वॉशिंग पाउडर्स, देन वी कैन गेट हियर द फ्रॉथ. ओके. देन व्हिप क्रीम, soap, lather, वही. So all these things they include here only the froth. It is known as a foam. तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फोम. So these are the various types of colloids are available. आपको ये जो सिस्टम से ये याद रखने होंगे और एग्जाम्पल्स इनके क्या दिए हैं ये आपको याद होने चाहिए. मीन्स if the example is given, for example smoke is an example of which of the type of colloid, then you should know it's nothing but the aerosol. So this like this the questions will be asked. Many questions are possible from this chapter because MCQs में आपको possibly पूछा जाएगा कि ये एग्जाम्पल कौन से टाइप का कोलाइड का है, तो आपको ये पता होना चाहिए. ओके. सो काइंडली नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स प्रॉपरली इन योर नोटबुक.
ओके, एंड लर्न ऑल these एग्जांपल्स. यू कैन सी these आर द वेरी कॉमन एग्जांपल्स, आपने तो यहाँ पे देखे भी होंगे. दैट्स व्हाई आई सेड कोलॉइड्स आर सो इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ आल्सो. ओके, नोट डाउन these things. Now, next is the classification of colloids based on the interaction, or we can say here affinity of phases. Affinity का मतलब होता है attraction. It's the attraction between the two phases. Okay, so on this basis, we can classify the colloids into two types: lyophilic colloids and lyophobic colloids. Remember, अगर यहाँ पे हम लोगों ने डिस्पर्शन मीडियम के तौर पर, डिस्पर्शन मीडियम अगर यहाँ पे होता है वाटर, तो हम इसको यस हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक भी बोल सकते हैं. हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन. सो यू नो, अगर होता है डिस्पर्शन मीडियम वाटर, देन दे आर आल्सो नोन एज अ हाइड्रोफिलिक. फोबिक का मतलब होता है रिपेलेंट, रिपेलेंट, और वी कैन से हियर फोबिक मतलब होता है फियरिंग. फियरिंग, नो दैट फोबिया, आपने ये वर्ड सुना होगा. फोबिया मतलब क्या, कि डर. तो यहां पे क्या होता है कि फोबिया मतलब यू नो दे आर फोबिक मीन्स दे आर फियरिंग, दैट्स व्हाई दे आर हेटिंग. तो ऐसे में क्या होता है, लायोफिलिक का जो यहां पे मतलब होगा, नो दैट लायो का मतलब है यहां पे लिक्विड, एंड फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन. सो व्हेन द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम, इनके बीच में अगर होता है अट्रैक्शन, इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इन बिटवीन देम, देन सच अ काइंड ऑफ कोलॉइड्स आर नोन एज अ लायोफिलिक कोलॉइड्स. ओके, तो अगर हम लोगों ने इसका किया इवेपोरेशन, सो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बीच में अगर होता है अट्रैक्शन, देन सच अ काइंड ऑफ सोल्स, और दे आर नोन एज अ लायोफिलिक सोल्स. बट वेन यू नो दैट द सेम मैनर, लायो का मतलब यहाँ पे क्या होगा, लायो मतलब होता है लिक्विड, एंड फोबिक का मतलब क्या होता है, रिपल्शन. You know that when there is a repulsion between the dispersed phase and the dispersion medium, such a kind of sols or colloids are called as a lyophobic colloids. जो भी होता है लायोफिलिक कोलॉइड्स, इनका अगर हम लोग करते हैं इवेपोरेशन, तो डिस्पर्शन मीडियम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इवेपोरेशन. बट व्हेन दे आर रिमिक्स टुगेदर, अगर उनको हम लोग वापस मिक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा वापस, दे विल अगेन फॉर्म द colloid. I mean again they will form the lyophilic colloid. So that's why they are also known as a reversible. They are also known as a reversible sols. ठीक है, अभी देखिए इनके बीच में क्या है मेन डिफरेंसेस, ये मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं. So the first one is here, lyophilic colloid जो है they are formed easily by mixing, क्योंकि disperse phase और dispersion medium के बीच में यहाँ पे अच्छा खासा होता है attraction. That's why they can be formed very easily by mixing only. They are formed easily by special methods. ये भी फॉर्म होते हैं, but that we have to apply some of the special methods for this. Then these are, I told you, reversible sols, कि अगर हम लोगों ने मतलब दोनों को अलग कर दिया और अलग करने के बाद वापस इनको हम लोगों ने मिक्स कर दिया तो क्या हो जाएंगे, वापस से फॉर्म हो जाएंगे. So they are reversible, but these are nothing but the irreversible. Then the point number 3, the particles are not easily visible even under ultra microscope. लायोफिलिक कोलॉइड में क्या होता है कि जो भी होते हैं पार्टिकल्स, इनको हम लोग देख नहीं पा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इवन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. अल्ट्रा माइक्रोस्कोप क्या होता है, इट्स अ माइक्रोस्कोप विच कैन विजुअलाइज वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स, लेकिन इसके अंदर भी आपको ये दिखाई नहीं देंगे. बट द पार्टिकल्स आर इजीली डिटेक्टेड by using the ultra microscope in case of lyophobic colloids. I mean lyophobic colloids. These are self stabilized. एक बार ये जब भी बन जाएंगे ये colloids तो ये होते हैं stable. They are self stabilized.
These are unstable, hence require trace amount of stabilizer. मतलब डिस्पर्स फेज भी होगा, डिस्पर्शन मीडियम भी होगा और कुछ होंगे ट्रेस अमाउंट ऑफ स्टेबिलाईजर्स जो दोनों को बांध के रखेंगे. आई मीन डिस्पर्स फेज को और डिस्पर्शन मीडियम को वो बांध के रखेंगे, उनको हम लोग बोलते हैं स्टेबिलाईजर. देन एडिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट causes precipitation, or we can say here coagulation. Now it's a different process that we have to see in the coming lectures. What is the meaning of coagulation? लेकिन फिर भी आपको पता होगा कि जैसे अगर हम लोगों ने मतलब अगर हमको कुछ खरोच चाहिए और अगर हमारा ब्लड बाहर निकल के आता है तो इमीडिएटली आफ्टर सम टाइम आपने देखा होगा इट गेट्स कोएग्युलेट. ओके, तो इन मराठी वी कॅन से की रक्त गोठणे आपण ज्याला म्हणू शकतो तर ते हे असतं. बट हियर ॲडिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वी रिक्वायर and that's why we can get here the precipitation. Here addition of only small amount is also enough. थोड़ा भी अगर हमने ऐड किया इलेक्ट्रोलाइट को तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेंगे यस लायोफोबिक कोलाइट्स. यू नो दैट आई टोल्ड यू जो भी यहाँ पे फॉर्म होता है प्रेसिपिटेट ये आता है एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब. अगर यहाँ पे लिक्विड है तो बॉटम में क्या होता है आपको मिलता है प्रेसिपिटेट, इसको हम लोग बोलते हैं पीपीटी. इट्स अ शॉर्ट फॉर्म. देन द नेक्स्ट पॉइंट हियर viscosity of the dispersed phase is much higher than the dispersion medium. Yes, dispersed phase की बहुत ज़्यादा होती है viscosity than the dispersion medium. लेकिन यहाँ पे dispersed phase और dispersion medium जो है दोनों की nearly same ही होती है viscosity in case of lyophobic colloids. Then surface tension of the dispersed phase is lower than that of the dispersion medium. आपको पता है ये क्या होता है फेनोमेनन. ओके, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन दैट टॉपिक आई थिंक स्टेट्स ऑफ मैटर. देन यहाँ पे both are having the same surface tension. I mean dispersed phase as well as dispersion medium both are having the same surface tension. So in this way we can classify the colloids on the basis of interaction or affinity of the phases. Okay, so this I think for today this is enough. In the next lecture we can see we will see the next topic. Okay, so till the time please take care and goodbye.